بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمعہ کا موضوع ہے حقوق العباد کی اہمیت۔ آج اس دنیا کے لوگ حقوق اللہ کو جانتے ہیں، اس کو مانتے ہیں اور اس پر عمل بھی کرتے ہیں، اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو حقوق اللہ کو بھی نہیں جانتے، حقوق العباد کی چھوڑیے۔ لیکن آج کے دور میں حقوق العباد میں جو حق تلفیاں ہو رہی ہیں اس کے نقصانات بہت زیادہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کے دوسرے پارے کے اندر ارشاد فرماتا ہے، ہم کو اور تمام مسلمانوں کو خطاب کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے کہ اے لوگو تم اسلام کے اندر پورے داخل ہو جاؤ۔ اللہ رب العالمین فرماتا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے ہم کو تمام کے تمام لوگوں کو یہ حکم دیا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ رب العالمین پر اگر ایمان رکھتے ہو تو تم پورے کے پورے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ۔ وَلَا تَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، تم شیطان کی اتباع نہ کرو، تم شیطان کی پیروی نہ کرو۔ لیکن آج کا معاشرہ اور آج کا سماج اور آج کا زمانہ اتنے آگے نکل چکا ہے، اس کی رسی اتنے آگے پہنچ چکی ہے کہ انسان اللہ اور اس کے رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و پیروی کرنا چھوڑ شیطان کی پیروی کر رہا ہے، شیطان کی اتباع کر رہا ہے، جس سے اللہ رب العالمین نے ہم کو منع کیا ہے کہ وَلَا تَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، تم کو شیطان کی اتباع نہیں کرنا ہے۔ اور اس سے پہلے اللہ رب العالمین نے کہا کہ ایمان والو تم اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، آدھے ادھورے داخل نہ ہو بلکہ پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ شریعت کو اپنے حساب سے مت بانٹو، اپنی خواہشات کے مطابق مت بانٹو کہ تمہاری خواہش تمہارے نفس کو جو اچھا لگے تم اس پر عمل کر جاؤ، عمل کر لو، اور جو تمہاری نفس کو اچھا نہ لگے، جہاں مصیبت پیش آئے تو تم اس کو وہاں پر چھوڑ دو۔ اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ تم پورے کے پورے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ، آدھے ادھورے داخل نہ ہو۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے پہلے پارے میں یہودیوں کی ایک صفت بیان کی ہے، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض۔ اللہ رب العالمین نے یہودیوں کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اے یہودیوں، تم اپنی تورات پر، اپنی کتاب جو ہے اس پر عمل کرو، اور ایسا نہ کرو کہ تم اس کے آدھے حصے پر عمل کرو اور آدھے حصے کو چھوڑ دو۔ کبھی موقع آتا ہے تو تم کہتے ہو کہ ہم تورات پر عمل کرنے والے ہیں، اور کبھی موقع آتا ہے تو تم اس کی خلاف ورزی کرتے ہو، اس کے خلاف جاتے ہو۔ تو اسی طریقے سے اگر تم ایسا کرو گے، اگر اس پر پورا عمل نہیں کرو گے تو تم دنیا میں ذلیل اور رسوا ہو جاؤ گے، اور قیامت کے دن اللہ رب العالمین تمہیں دردناک عذاب دینے والا ہے، اس بات پر یقین رکھ لو۔ تو یہی خطاب اللہ تبارک و تعالی نے امت محمدیہ کو بھی کیا ہے کہ اے ایمان والو ادخلوا فی السلم کافۃ، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اے ایمان والو تم پورے کے پورے اسلام کے اندر، دین اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ۔ اس کو اپنی دماغ سے اور اپنی ذہنیت کے مطابق نہ چلاؤ، کیونکہ اگر اس کو چلاؤ گے تو تم ہلاک ہوا برباد ہو جاؤ گے۔ اس کے اپنے حساب سے اس کو لے کر چلو گے تو تم تباہ و برباد ہو جاؤ گے، ہلاکت کی طرف چلے جاؤ گے۔ تو اللہ رب العالمین نے خاص طور پر حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے حقوق العباد کی بھی بہت تاکید کی ہے۔ اور ہمارے معاشرے میں دو قسم کی کیٹیگری پائی جاتی ہیں،
دو قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں، دو قسم کا طبقہ پایا جاتا ہے۔ ایک طبقہ وہ ہے جو نمازی ہے، جو دین کے شاعر پر عمل کرنے والا ہے، دین پر عمل کرنے والا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج کرتا ہے، عمرہ کرتا ہے۔ اور ایک طبقہ وہ ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ حقوق اللہ میں وہ صحیح ہیں، لیکن حقوق العباد کے معاملے اس کے گڑبڑ ہیں، اس کے اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ حقوق اللہ میں، حقوق العباد میں ظلم و زیادتیاں ہیں، بہت زیادہ ظلم ہے۔ اور ایک طبقہ وہ ہے جو حقوق العباد میں تو اچھا ہے، حقوق کے معاملے میں اچھا ہے، رشتہ داریوں کے معاملے میں اچھا ہے، لیکن حقوق اللہ میں گڑبڑی ہے، نمازوں سے دور ہے، دین سے دور ہے، اللہ کے احکامات سے دور ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے دور ہے۔ اور تیسرا وہ طبقہ ہے جو نہ دین کے قریب ہے، نہ حقوق اللہ سے آشنا ہے، نہ حقوق العباد سے آشنا ہے، نہ اس کو نمازوں سے کوئی مطلب ہے، نہ روزے سے کوئی مطلب ہے، نہ اس کو رشتہ داریوں سے کوئی مطلب ہے۔ یہ تین قسم کے لوگ ہیں۔ اب ان لوگوں کے بارے میں دیکھیے کہ جو لوگ نمازی ہیں، تہجد گزار ہیں، جو لوگوں نے حج کر چکے ہیں، عمرہ کر چکے ہیں، جو اللہ رب العالمین کے دین پر عمل کرتے ہیں، لیکن حقوق العباد میں ان کی بہت گڑبڑیاں ہیں۔ وہ کیوں؟ وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم نماز تو پڑھ رہے ہیں، ہم نے حج کر چکا ہے، ہم نے عمرہ کر چکا ہے، ہم اللہ رب العالمین کے لیے نمازیں پڑھ رہے ہیں، دین کے ہر احکامات پر عمل کر رہے ہیں۔ اگر ہم سے ایک عمل چھوٹ بھی جائے گا، اگر ہم حقوق العباد میں اگر یہ چھوٹ بھی جاتا ہے تو کیا فرق پڑے گا؟ میرے بھائی اور بزرگوں، بہت بڑا فرق پڑنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیونکہ اپنے حق کے ساتھ بندوں کا حق کا ذکر کیا ہے، تذکرہ کیا ہے، پیرلل ذکر کیا ہے، یعنی ساتھ میں ذکر کیا ہے۔ سورہ نساء کی آپ آج اٹھائیے، بہت مشہور آیت ہے، آپ نے پڑھی اور سنی ہوگی کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ ذِي الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ۔ بہت لمبی آیت ہے۔ اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے کہ تجھ کو عبادت کرنا ہے تو اللہ رب العالمین کی، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا ہے۔ اور اس کے بعد جو پوری لمبی آیت ہے حقوق العباد کے بارے میں ہے، بندوں کے حقوق کے بارے میں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت خطرناک حدیث ہے میرے بھائی اور بزرگوں۔ اپنی امت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وارننگ دی ہے، تنبیہ کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لا تؤدن الحقوق الى اهلها يوم القیامہ، اگر تم دنیا میں حقدار کو اس کا حق نہیں دو گے تو کل قیامت کے دن تم کو اس کا حق دینا پڑے گا۔ اب کیسے دو گے وہ چھوڑیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم کو حقداروں کا حق دینا پڑے گا۔ ارے تم تو انسان ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اگر دنیا میں رہتے ہوئے اگر کسی بنا سینگ والی بکری نے اگر سینگ والی بکری کو مارا ہوگا، بنا سینگ والی بکری کو اگر سینگ والی بکری نے مارا ہوگا، قیامت کا دن جب لگا ہوگا، اللہ رب العالمین کہے گا اے بنا سینگ والی بکری، تجھ کو اس سینگ والی بکری نے تجھے دنیاوی زندگی میں مارا تھا نا، آج اللہ رب العالمین کے حساب کا دن ہے، جا اپنا بدلہ لے لے۔ ایک بنا سینگ والی بکری سے، ایک سینگ والی بکری سے بھی قصاص لیا جائے گا، اور ایک بنا سینگ والی جو بکری نے مار کھایا تھا اس کا بھی بدلہ لیا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کانت مظلمۃ لاخیہ، کہ اگر آپ نے اپنے بھائی پر اگر کسی طرح کا ظلم کیا ہے، ومالہ وارجہ، اگر اس کے مال میں اگر آپ نے کوئی نقصان کیا ہے، یا اس کی عزت و آبرو کو آپ نے اچھالا ہے، یا آپ اس پر تہمت لگائی ہے، یا اس کو گالی دی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے میرے صحابہ،
उससे दुनिया में पीछा छुड़ा लेना, उससे दुनिया में माफी मांग लेना, उसका दुनिया में हक अदा कर देना। जहां मेरे सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खिताब है, वहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपनी उम्मत को भी खिताब है। क्या कहा कि अगर दुनिया में अगर तुमने किसी पर जुल्म किया है, किसी पर तोहमत लगाई है, किसी को अगर गाली दी है, तो उससे दुनिया में पीछा छुड़ा के आ जाना। क्यों? क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मिन क़ब्ल अन यातिया यौमुन ला दिरहम लहु वला दीनारन, कि एक दिन ऐसा आने वाला है, वो कयामत का दिन आएगा ना, तो तुम्हारे दिरहम और दीनार नहीं चलेंगे, ये पैसा नहीं चलेगा, ये पैसे की करेंसी वहां पर नहीं चलेगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्त तंबीह की है कि दुनिया में माफी मांग लेना। अगर इस तरह से करके आओगे, हकदारों का हक मार के आओगे, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, उस दिन तुम्हारा पैसा नहीं चलेगा, उस दिन तुम्हारे दिनार और दिरहम नहीं चलेंगे, जो चलने वाला है वो क्या चलेगा? अल्लाह तबारक व तआला, अगर आपने किसी का हक मार के दुनिया में आया है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी आपके पास जो नामाए अमाल में जो नेकियां हैं, सारी नेकियां उठाकर जिसका भी आपने हक मार के आया है उसको अल्लाह रब्बुल आलमीन दे देगा। और अगर तब भी हक उसका बाकी रह गया है, आपके नामाए अमाल में नेकियां खत्म हो गई, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन जिसका हक मार के आपने आया है, तो उसकी गुनाह उठाकर आपके सर पर डाल देगा, आपके ऊपर डाल देगा। तो मेरे भाई और बुजुर्गों, हुकूकुल इबाद को हल्के में ना लीजिए, इतनी आसानी में ना लीजिए। आज दुनियावी इंसान क्या होता है, दुनियावी मामलात में अपने भाई से चार बातें क्या हो जाती हैं, झगड़े वाली चार बातें क्या हो गई, जिंदगी भर के लिए उसने ताल्लुक तोड़ दिया, जिंदगी भर के लिए उसने बात करना छोड़ दिया। जरा गौर और फिक्र कीजिए, हुकूकुल इबाद को आसानी से ना लिया, आसानी में ना लीजिए। मेरे भाई और बुजुर्गों, आप दीनदार हैं, आप नमाज पढ़ रहे हैं, आपने हज कर चुका है, आप उमरा कर रहे हैं, और आप पांचों वक्त ही अगर नमाज पढ़ रहे हैं, लेकिन हुकूकुल्लाह के साथ साथ अगर हुकूकुल बात में गड़बड़ियां हैं, आप अपने भाई से दुश्मनी मोल लेकर जी रहे हैं, अपने इस्लामी भाई से दुश्मनी मोल लेकर जी रहे हैं, तो रब्बे काबा की कसम खाकर कहता हूं, इस मेंबरे रसूल पर खड़े होकर रब्बे काबा की कसम खाकर कहता हूं कि कयामत के दिन आपकी सारी नमाजें आपके मुंह पर मार दी जाएंगी। मेरे भाई और बुजुर्गों, अब गौर और फिक्र कीजिए, हम नमाजी हैं, हम रोजेदार हैं, हमने हज किया है, हम उमरा करते हैं, लेकिन गौर और फिक्र कीजिए, हम अपने मुसलमान भाई से दुश्मनी मोल लेकर बैठे हैं, अपने मुसलमान भाई से बात नहीं करते, उससे ताल्लुक तोड़कर बैठे हैं, तो याद रखिए आपकी सारी नमाजें आप कयामत के दिन आपके मुंह पर मार दी जाएंगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी नमाजों को कबूल नहीं करेगा। और ये कहा जाता है ना कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि तुम्हारी नमाजें तुम्हारे पर मुंह पर मार दी जाएंगी, तो ये झूठी नहीं है। अपने वक्त अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए वक्त निकालते हो, नमाज अदा करते हो, लेकिन अगर आपके अंदर हुकूकुल इबाद में गड़बड़ियां हैं, हुकूकुल इबाद में अगर कुछ हक तलाफी है, तो अल्लाह तबारक व तआला आपको माफ नहीं करेगा। सारी जिंदगी की नमाजें, एक वक्त नहीं, पूरी जिंदगी की नमाजें अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके मुंह पर मार देगा। अगर आपने अपने भाई से दुश्मनी मोल लेकर रखा है, अगर आप किसी अपने भाई से बात नहीं करते, तो याद रखिएगा मेरे भाई और बुजुर्गों, हुकूकुल इबाद में अगर सबसे पहले अगर किसी की बात आती है, तो आती है वालिदैन की, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने अक्सर मकामात पर अपने हक के बाद सबसे पहले वालिदैन का हक बताया है। आप सूरह कुरान मजीद की सूरह लुक़मान में देख लीजिए, आप कुरान मजीद की सूरह इसरा में देख लीजिए, अक्सर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने हक के बाद माँ बाप का हक बताया है। सूरह बनी इसराइल की एक आयत अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तक़ुल लहुमा उफ़्फ़िन व ला तनहरहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा वख़्फ़िज़ लहुम जनाह ज़ुल्लि मिनर रहमति वक़ुल रब्बिरहमुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। अल्लाहु अकबर। ये सूरह बनी इसराइल की अगर आयतों पर इंसान ने अमल कर लिया ना, तो उसके साथ और उसके माँ बाप के हुस्न सलूक का सिलसिला उसके पर जरूरी हो जाएगा और उसके लिए काफी हो जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया है कि तुम अपने माँ बाप के साथ अगर इबादत करना है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की करो, और अपने माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करो, अच्छे सलूक करो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा उन दोनों में से या एक बुढ़ापे की उम्र को पहुंच जाए,
इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर अहदुहुमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पहले एक का जिक्र किया, क्योंकि अगर दोनों बूढ़े हैं, दोनों बुढ़ापे की उम्र को पहुंच गए हैं, तो दोनों एक दूसरे की बातों को सुन सकते हैं, बता सकते हैं और दुख दर्द की बातें कह सकते हैं। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक का जिक्र किया, अगर एक ही बुढ़ापे को पहुंचा है, एक ही बचा है, तो तुम्हारा हक ज्यादा है कि तुम उसका ज्यादा ख्याल रखो। कैसा ख्याल रखा जाएगा? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा फला तकुल लहुमा उफ़ वला तनहरहुमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा जब वो बुढ़ापे की उम्र को पहुंच जाए तो तुम उन्हें उफ भी मत कहो। आज का माशरा क्या बोलता है मालूम आपको? आज का माशरा ये है कि अगर माँ बाप ने छोटी सी गलतियां कर दी, बुढ़ापे की उम्र को पहुंच गए हैं मेरे भाई और बुजुर्गों, आपके जैसे जवान नहीं रहे, आपके जैसे जवानी के आलम में वो नहीं है, बुढ़ापे के आलम में वो पहुंच गए हैं। अब वो पैसे पहले जैसी उनके अंदर अकल व दिमाग नहीं रहा, पहले जो अकल चलती थी वो अकल नहीं चलती, बुढ़ापे की उम्र को पहुंच गए हैं। अगर जरा सी माँ बाप से कोई गलती हो जाए तो माँ बेटे उन पर चढ़ाई कर देते हैं, उनको बुरा भला कहने लगते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है उफ भी मत कहो। अहले इल्म ने कहा कि अगर माँ बाप को तकलीफ पहुंचाने के लिए इससे छोटा उफ अगर कोई लफ्ज होता तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको जरूर बयान करता, लेकिन इससे कोई छोटा लफ्ज नहीं है मेरे भाई और बुजुर्गों। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि तुम उन्हें उफ भी मत कहो, तुम उन्हें डांटो डपटो मत, उनके सामने अदब से खड़े हो। वक़्फ़िज़ लहुमा जनाह-उज़्ज़ुल्लि मिनर रहमा, और अपने रहमत के बाजुओं को उनके सामने बिछा दो। उनके सामने अकड़ कर ना चलो, उनके सामने आंखें दिखाकर खड़े ना हो जाओ, उनके सामने अपने रहमत के बाजुओं को बिछा दो और उनसे बात करो तो तुम बहुत अदब के साथ बात करो। ये अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है मेरे भाई और बुजुर्गों। आज दुनिया कहाँ जा रही है? आज दुनिया तो इतनी आगे निकल चुकी है कि वो अपने माँ बाप के हुकूक को भूल गए। आज इंसान अपने माँ बाप के हुकूकों को भूल गया कि माँ बाप के हम पर क्या हुकूक हैं। बुढ़ापे को अगर पहुंच जाए तो उनको अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है उफ भी मत कहो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन को मुखातब करते हुए फरमाया, सही बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है, क्या मैं तुम्हें सबसे बड़े गुनाह के बारे में ना बताऊं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा सहाबा किराम ने, अल्लाह के रसूल क्यों नहीं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल इशराकु बिल्लाह व उकूकुल वालिदैन, अल्लाह के साथ शिर्क करना ये सबसे बड़ा गुनाह है। और दूसरा गुनाह सबसे बड़ा ये है कि अपने माँ बाप को दुख पहुंचाना, अपने माँ बाप को नुकसान पहुंचाना, अपने माँ बाप को मुसीबतों में डाल देना। मेरे भाई और बुजुर्गों, माँ बाप की अहमियत उन लोगों से पूछो जिनके माँ बाप जिंदा नहीं है, जिनके माँ बाप जवानी के आलम में इस दुनिया से चले गए, जिनके माँ बाप इस दुनिया से जवानी के आलम में खत्म हो गए। माँ बाप की अहमियत उनसे पूछो मेरे भाई और बुजुर्गों। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं तुम उनको नुकसान ना पहुंचाओ, उनको डपटो मत, उनको डांटो मत, उनके आगे तुम खड़े हो तो जिल्लत और रुसवाई के साथ खड़े हो, अपनी नजरों को झुका कर खड़े हो। यकीनन आप नमाजी हैं, आप दीनदार हैं, आप नमाज पढ़ते हैं, आप हज कर चुके हैं, आज आप उम्रा कर चुके हैं, लेकिन अगर आपका ताल्लुक अपने माँ बाप के साथ अच्छा नहीं है, आप अपने माँ बाप को दुख और तकलीफ पहुंचाते हैं, अपने माँ बापों से आपने बोलचाल बंद कर दी है, ताल्लुक खत्म कर दिया है, तो मेरे भाई और बुजुर्गों, कुरान रब्बे काबा की कसम खाता हूं, कुरान व सुन्नत की नजर में आप मुसलमान नहीं हैं, आप पक्के मोमिन नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला की नजर में आप मोमिन नहीं है, मुसलमान नहीं है। मेरे भाई और बुजुर्गों, ये है हुकूकुल इबाद की फजीलत। हुकूकुल इबाद में आज इंसान इतना पीछे है। अब सबसे पहला हुकूक वालिदैन का जिक्र किया गया, इसी के बाद अगर दूसरा हक आता है तो इसी को पलट लीजिए। जिस तरह से माँ बाप के औलाद के वालिदैन पर हुकूक है, इसी तरह से वालिदैन के औलाद पर भी हुकूक है। किस तरह से हुकूक है? एक जमाना था अरब में कि अपनी औलादों को उनको कत्ल कर दिया करते थे, फाका कशी के डर से कत्ल कर दिया करते थे कि हमारा बच्चा पैदा होगा तो दुनिया में क्या खाएगा, क्या पिएगा, वो सोचकर उसको बच्चे को वो कत्ल कर दिया करते थे। और अल्लाह तबारक व तआला ने इनकी रस्म को इसको रद्द करने के लिए कितने मकामात पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनका रद्द किया है। अल्लाह तबारक व तआला सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 31 के अंदर इरशाद फरमाता है, क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, वला तक़्तुलू औलादकुम खश्यत इमलाक नहनु नरज़ुकुकुम व इय्याकुम। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह बनी इसराइल के आयत नंबर 31 में क्या फरमाया कि तुम फाका कशी के डर से और गरीबी के डर से अपनी औलादों को कत्ल ना करो।
क्यों? तुम उनको खिलाने वाले नहीं हो, तुम्हारे अंदर इतनी औकात नहीं है जो तुम उनको खिला सको। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है नहनु नर्ज़ुकुकुम व इय्याकुम, हम ही तुम्हें खिलाने वाले हैं और हम ही उनको खिलाने वाले हैं। तुम्हारी औलाद जो आती है दुनिया में वो मुकद्दर लेकर आती है। अल्लाह तबारक व तआला ने औलादों को कत्ल करने से मना फरमाया है। शरीयत इस्लाम इसकी इजाजत बिल्कुल नहीं देता, लेकिन हमारा माशरा ये बदल चुका है कि आज बहुत से मुसलमान भाई अपने और बहुत सी मुसलमान माए अपने बच्चों को अपने पेट में ही कत्ल करवा रही हैं और अपने बच्चों को साबित करवा रही हैं। ये इस्लाम, दीन इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। मेरे भाई और बुजुर्गों, आपके यहाँ बच्चे आ रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं आपके यहाँ फाका कशी आ जाएगी, गरीबी आ जाएगी। वो अपना मुकद्दर लेके आते हैं, तुम उनका मुकद्दर नहीं लिखते। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनका मुकद्दर लिख चुका है। ऐसा नहीं है कि जिसका एक बच्चा है वो बहुत आराम से हो और जिसके 10 बच्चे हो वो मुसीबत व आलाम से खा रहे हो और पी रहे हो। ऐसा भी होता है कि जिसका एक बच्चा है वो बहुत मुसीबत व आलाम में है, परेशानियों से गुजरता है, जिसके 10 बच्चे हैं वो आराम से खा पी रहे हैं। तो मेरे भाई और बुजुर्गों, अल्लाह तबारक व तआला ने ये माँ बाप का हक है अपनी औलाद पर कि तुम उनको कत्ल ना करो। अगर कत्ल करोगे तो यकीनन अल्लाह तबारक व तआला का अजाब तुम पर लाहिक हो जाएगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन का अजाब तुम पर आ पहुंचेगा। तो मेरे भाई और बुजुर्गों, हुकूकुल इबाद को बहुत आसानी में ना लीजिए। सारी जिंदगी की इबादत अगर रद्द कर दी जाएंगी, अगर आपने अपने भाई के हक को मारा है, आपने अपने भाई से रिश्तों को तोड़ लिया है, अपने भाई से बातचीत बंद कर दी है, तो आपकी जिंदगी की सारी इबादत तबाह बर्बाद हो जाएंगे। सारी नमाजें अल्लाह रब्बुल आलमीन मुंह पर मार देगा। और इसके बाद क्या होता है, हुकूकुल इबाद में औलाद का अपने माँ बाप पर क्या हुकूक है कि जब बच्चा पैदा हो जाए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम उसका अच्छा से अच्छा नाम रखो। आज नाम रखने का भी बहुत बड़ा मसला है हमारे समाज के अंदर। एक साहब से पूछा गया, एक साहब ने अपनी बच्ची का नाम मुहीन रखा, लड़की का नाम मुहीन रखा। उनसे पूछा गया तुमने अपनी बच्ची का नाम मुहीन क्यों रखा है? तो उसने जवाब दिया कि मेरी बीवी ने कुरान मजीद पर हाथ रखा, उंगली रखी, जिस लफ्ज पर उसका उंगली चली गई मैंने उसका नाम रख दिया। तो उनको बताया गया कि मुहीन का मतलब जो होता है, मुहीन का जो मायना होता है वो जलील व रुसवा होता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत से सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन के नामों को तब्दील कराया, नामों को बदला है। तो आपका बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता जाए, आप उसको दीनी तालीमात की तरफ लेकर जाइए, उसको सही अदब सिखाइए, हराम व हलाल में तमीज सिखाइए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को उठाकर देखिए। हजरत अबू हसन रज़ियल्लाहु अन्हु 5 साल की उम्र के हैं, 5 साल के हैं, मस्जिद में बैठे हुए हैं, सदका की कुछ खजूरें आती हैं, खजूर उठाकर हजरत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु मुंह में डाल लेते हैं। 5 साल की उम्र है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि मेरे बच्चे तू उस खजूर को थूक दे, क्योंकि तू आले मोहम्मद से है और आले मोहम्मद पर सदका खाना हराम है, आले मोहम्मद पर सदका खाना हराम है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतनी डिटेल देने की क्या जरूरत थी, इतनी बातें बताने की क्या जरूरत थी, इतनी अकीदे की बात बताने की क्या जरूरत थी? आप यूं ही कह देते कि बच्चे ए मेरे बेटे उसको मुंह से उगल दो, नहीं। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको अकीदे की बात बताई, बेहतरीन बात बताई। तो मेरे भाई और बुजुर्गों, जब आपका बच्चा जैसे जैसे बड़ा हो, आप उसको दीनी तालीमात की तरफ रुझान करिए, उसको हलाल व हराम में तमीज सिखाइए। और जब आपका बच्चा 7 साल का हो जाए, उसको नमाज का हुक्म दीजिए। जब 10 वर्ष का हो जाए, नमाज ना पढ़े, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ये रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब आपका बच्चा 10 वर्ष का हो जाए और अगर वो नमाज ना पढ़े, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम उसको नमाज पढ़ाने के लिए मारो। लेकिन अगर आज हम खुद ही नमाज नहीं पढ़ते तो किस लफ्ज़ से अपने बच्चों को बोलेंगे कि नमाज के लिए चलो या नमाज पढ़ो? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने अब्बा से कहा, ऐ मेरे अब्बा जान, मैंने ख्वाब में देखा है कि चांद सितारे सूरज मुझे सजदा कर रहे हैं। आपके अब्बा ने कहा, ऐ मेरे बेटे, अपने भाइयों को ये ख्वाब ना बताना, क्योंकि वो तुम्हारे लिए कोई फरेब डाल देंगे, तुमसे दुश्मनियां मोल ले लेंगे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ मेरे अब्बा जान, क्या मेरे भाई मेरे दुश्मन हैं? क्या मेरे भाई मेरे दुश्मन हो सकते हैं?
اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان کہتا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تیرے بھائی تیرے دشمن نہیں ہے، ان الشیطان للانسان عدو مبین، انسان کا شیطان جو کھلا ہوا دشمن ہے، ہو سکتا ہے وہ ان کو بہکا دے گا، غلطیوں میں ڈال دے گا اور تجھے ان کو بہکا کر تجھے غلط راستے کی طرف لے کر چلے جائے گا۔ تو یہ اولاد کے حقوق ہے اپنے ماں باپ پر کہ ان کی صحیح تعلیمات دلائیں، بچپن سے دلائیں گے تو بڑا تک ویسا ہی رہے گا۔ تو میرے بھائی اور بزرگوں، حقوق العباد کی اہمیت کو سمجھیے، حقوق العباد کو آسانی سے یوں ہی نہ جانے دیجیے۔ اپنے بھائیوں سے اگر رشتے میں گڑبڑیاں ہیں تو آج موقع ہے ان کو ختم کر کے اپنی اصلاح کر لیجئے۔ اگر آپ کے اندر اصلاح نہیں ہے، آپ نے دشمنیاں مول لے کے رکھی ہیں، چار باتیں انسان کی ہوتی ہیں، بات چیت بند کر دیتا ہے، ساری زندگی کے لیے رشتہ توڑ دیتا ہے، تو ایسا نہ کریے۔ اگر ایسا کریں گے تو آپ ساری زندگی اگر بھی عبادت کرتے رہیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ساری عبادت کو آپ کے منہ پر مار دے گا۔ تو ماں باپ کے حقوقوں کو بھی خاص خیال رکھیے، کیونکہ وہ ماں باپ وہ ذریعہ ہیں جن کی وجہ سے، جن کے ذریعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دنیا میں بھیجا ہے۔ کرو ماں باپ کی خدمت، یہی تمہارے کام آئے گی۔ کرو ماں باپ کی خدمت، تمہارے کام آئے گی، یہی خدمت تمہیں اللہ